कमेटी के सभी सदस्य और आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी, मैं चंदा सागर एनेबलिंग यूनिट की ओर से आज के कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो विकलांग और भारतीय समाज, इस विषय पर बाइलिंगुअल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी के और बहुत सारे हिंदी के। तो मैंने ही सर से बोला था, चूंकि सर इंग्लिश विभाग से हैं, फिर भी मैंने उनसे कहा कि जिन बच्चों के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहां तक सीधे मैसेज पहुंचे, तो इसीलिए मैंने ही कहा सर को कि वो बाइलिंगुअल अपने प्रोग्राम को या अपने वक्तव्य को रखें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को संक्षिप्त परिचय से अवगत कराना चाहूंगी। उसके लिए मैं ऐश्वर्या को बुलाना चाहूंगी कि ऐश्वर्या आए और सर से बच्चों को अवगत कराएं। Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. It's our privilege to have Professor Someshwar Sati with us. Sir is a professor in the Department of English in Kirodimal College, University of Delhi. His areas of research interest are post-colonial theory and literature and disability studies. His latest publication is an edited volume of critical essays from Routledge titled Disability in Translation: The Indian Experience. He is also coming up with a two-volume edited anthology of disability short stories from India published by Bloomsbury. These volumes shall hit the Indian market late this year. Sir, we'll be eagerly waiting for your work. Time to time, Sir has graced our events with his gracious presence, and once again, we have the privilege of his presence. Today, he'll be shedding light on the topic disability and society, and I am sure that we will gain new insights and perspectives from his session. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time for us. ईश्वर जी को अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दें। और बच्चों, आपको कहीं से भी जो पूछना है, प्रश्न कुछ भी दिमाग में आए, वो अंत में करेंगे, अंत में आपको समय देंगे सर से बातचीत करने के लिए। सर आप आए, अपना व्याख्यान रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत। Right. So let me begin by thanking Chanda ji for inviting me to discuss a few things pertaining to disability with you. I was saying that Miranda House in the past couple of years has invited me on a number of occasions to talk about disability, whether it was the women's cell or the English department. I have been here on several occasions. And on the previous occasions, my main intention was to sensitize the non-disabled community about matters pertaining to disability. Today, the target audience is slightly different. It is the members of the enabling unit of college. So the orientation of my lecture would be slightly different. My main intention will be to discuss with you various situations in which we find ourselves and how to negotiate that situation. We all live in a predominantly ableist world, and everything is organized in relation to those who are non-disabled.
obviously we feel marginalized. So how should we handle the situation? I will put forward several situations and then try to discuss them. Situation number 1, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उसको हवाई यात्रा करना है, तो एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचता है। वहां वो कहता है कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। एयरलाइंस तुरंत एक सहायक को बुलाता है। वो सहायक एक व्हीलचेयर लेके आता है, दृष्टि बाधित व्यक्ति को उस पर बैठाता है और वो दृष्टि बाधित व्यक्ति खुशी खुशी उस पर बैठ के अपने हवाई जहाज की ओर चल पड़ता है। Now, just think for a while about this situation. बहुत खुशी की बात है कि एयरलाइंस वाले को यह एहसास है कि दृष्टिबाधित लोगों को सहायता की जरूरत है। ये बहुत खुशी की बात है कि वो तुरंत एक सहायक को बुलाता है जो कि व्हीलचेयर लेके आता है और उस व्हीलचेयर पर दृष्टिबाधित व्यक्ति बैठ के चला जाता है खुशी खुशी। अब आप इसको गौर से देखिएगा। दृष्टिबाधित होने का मतलब है कि उस व्यक्ति को देखने में परेशानी है, इसलिए उसको सहायता की जरूरत है। लेकिन एयरलाइंस एक व्हीलचेयर लाके उसको दे देता है। This shows that there is a complete lack of understanding about the kind of needs that different categories of the disabled require at the airport. दृष्टिबाधित व्यक्ति चल तो सकता है, तो उसको व्हीलचेयर की आवश्यकता क्यों? और उस दृष्टिबाधित व्यक्ति को देखिए, वो भी खुशी खुशी बैठ जाता है। शायद सोच ये है कि आराम से मैं हवाई जहाज तक पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप आराम ढूंढिएगा तो अस्तित्व खोइएगा। The first thing that I would like to tell you is that never ever entertain unnecessary accommodations. उस दृष्टिबाधित व्यक्ति के हरकत से सोचिए कि क्या होता है। एक छवि बनती है ब्लाइंड लोगों का समाज में। देखो, ये तो चल सकता है, फिर भी व्हीलचेयर पर बैठ गया। आवश्यकता ये है कि हम अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से सामने में रखें। एयरपोर्ट पर हमको सहायक की जरूरत है जो कि हमको गाइड कर सके, ना कि व्हीलचेयर की। इंटेंशन अच्छा है, लेकिन क्या व्हीलचेयर जरूरी है? जिंदगी में कभी भी आराम के खातिर अपना स्वाभिमान नहीं खोइए। और अपनी जरूरतों को
जब तक आप एडवर्टाइज नहीं कीजिएगा, अभिव्यक्त नहीं कीजिएगा, तब तक दूसरे को क्या पता कि आप क्या चाहते हैं. I would like to share with you at this point an anecdote in my own life. I joined JNU about 30 years ago, 1990 में. I came to JNU all alone. The going was really tough. I was under the impression that I was being marginalized by my classmates. I was under the impression that nobody wanted to be friends with me. One day, one of my female classmates came up to me and said, "Someshwar, we all want to help you, but we do not know how to. So unless you tell us that how should we help you, how can we help you? Because we don't really know how to go about helping you. And it is not as if we do not want to talk to you. We want to talk to you, but we do not know what to say to you. Would you feel bad about something that we tell you? So please break the ice. आप पहला कदम उठाओ, उसके बाद देखिए कि क्लास कैसे आपका साथ देगा. And believe me, this was the best advice that anybody gave to me in my life. Advertise your needs so that people can understand exactly what you want. वो लोग तो अंतर्यामी है नहीं कि परख लेंगे कि आपकी जरूरत क्या है. So never ever feel shy of advertising your needs. And second, always try to break the ice. आप हमेशा पहला कदम उठाइए समाज के साथ इंटरैक्शन में. And believe me, from that day onwards, from when I began to follow her advice, the world changed completely. क्या दिक्कत है? हम ही पहले अपने तरफ से कदम उठाए लोगों से बात करने में. हम सोचते हैं कि वो हमसे नहीं बात करना चाहता है, और अगर हम पहला कदम नहीं उठाएं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ये सोचते हो कि हम उन लोगों से बात नहीं करना चाहते. ये जरूर है कि कभी कभी people will snub you, but most of the times there is no harm in saying hello to an unknown person and starting a conversation. And once you adopt this, you would see that the world will be a much better place to live in. Let me give you another example. A blind man goes to a restaurant with his wife. The waiter comes, asks the wife कि आपको क्या खाना है. Pauses for a minute, looks at the blind person, then turns to the wife again and says, और इनको क्या खाना है? ऐसा प्रतीत होता है कि वो दृष्टिबाधित व्यक्ति वहां है ही नहीं. और हम लोगों को ये समझना होगा कि वेटर ऐसा क्यों करता है.
वो दृष्टिबाधित व्यक्ति उठ के ये बोल सकता है, क्या मैं खुद नहीं बोल सकता हूं? तुम मुझसे नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछे? लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? जैसे आपका ईगो हर्ट होता है, उसी तरह उस वेटर का भी ईगो हर्ट हो सकता है। कल कुसुम जी बोल रही थी कि छोटे बच्चे के गाल पर माँ बाप भी थप्पड़ लगाते हैं तो वो बच्चे को जिंदगी भर वो बात याद रहती है। ये तो आपका बच्चा भी नहीं है, कोई पराया है, उसे आप अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप उसको सह लीजिए। उसका सोचने का ढंग को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। लेकिन हथौड़ा से ताला तोड़ने पर ताला टूट जाता है और बहुत मेहनत भी लगता है। एक छोटी सी चाबी से ताला भी खुल जा सकता है और ताला टूटता भी नहीं। ये कल कुसुम जी ने कहा। बात बहुत सटीक सी है। अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए था? दो तरीका है। The wife of the blind man could have turned to the blind person and asked him, आपको क्या खाना है? And then the blind man could have replied. Or if the wife doesn't do that, the blind man, without any sense of aggression, can easily say that I want this, this, and this, or this and this and this for me, and then strike a one-line conversation with the waiter. मेरी बात मानिए, 10 बार में से 9 बार अगला बार वेटर आएगा तो आपसे, वो ब्लाइंड मैन से जरूर पूछेगा, सर आप क्या खाना चाहते हैं? आपको मैं पानी दूं? It is the initial hesitation that a lot of non-disabled people have in interaction with disabled people. आप इस तरह से कोशिश कीजिएगा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। But I'm not trying to say that the world is devoid of discrimination. No, I'm not trying to say that. What I'm trying to say is that there is a lot of discrimination, a lot of ill feeling towards the disabled people. But that is because they have been taught to think in a particular way. It is not because that they are evil. तो हम लोग को वो सोच बदलना है, और वो सोच बदलने का तरीका भी हम ही लोग को सोचना है, हम ही लोग को आगे बढ़ना है। एग्रेशन के साथ नहीं, समझ बूझ के साथ और प्यार के साथ। मैंने कहा कि सोचने का ढंग जो है वो हमारे समाज में थोड़ा सा विकृत सा है।
पंचा साहब अपने बचपन के बारे में, पंचा साहब हम लोग के यहाँ चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी थे कुछ सालों पहले। दुर्भाग्यवश उनका देहांत भी हो गया है, लेकिन वो एक कहानी सुनाया करते थे जो हमको हमेशा याद रहता है। वो कहते थे, सोमेश्वर, हम 5 भाई थे और 5 में मैं सबसे छोटा। कोई भी गेस्ट घर आता था तो 5 बच्चे का परिचय उनसे कराया जाता था। सबसे बड़ा भाई से गेस्ट पूछता था, बेटे आप कौन क्लास में हो? वो जवाब देता था, फिर से वो पूछता था, आपका प्रिय विषय क्या है? दूसरा से पूछा जाता था, अच्छा बताओ 15 और 17 कितने होते हैं? इसी तरह से मेरे 4 बड़े भाइयों से ये पूछा जाता था, पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई सवाल। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो वो गेस्ट प्राय बोलता था, अच्छा बेटा हमको कुछ गा के सुना दो। So just think about it. This is a very, very unfortunate state of affairs. But blindness has always been equated with inability to know. Because the sighted world feels that sight is the sole medium of gathering knowledge. Now let me share with you a personal episode. 1994 में मैं भागलपुर जहां मैं रहता था वहां से लौट रहा था अपने दोस्तों के साथ दिल्ली, जहां मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाता था। उन दिनों और आज भी ब्लाइंड लोगों को रेलवे कंसेशन मिलता है। तो हम लोग ट्रेन में सवार थे, मैं ब्लाइंड कंसेशन लेकर सफर कर रहा था और अपने दोस्तों में हम लोग सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे। टिकट कलेक्टर आया, मेरा टिकट लिया, टिकट को देखा और हमसे बोलता है, ए नटवर लाल कहीं के। मैंने घूम के पूछा मतलब? बोलता अंग्रेजी में फटर फटर करता है और ब्लाइंड कंसेशन पर ट्रैवल करता है। हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो सब लोग बोला नहीं ये तो ब्लाइंड है। तो बोलता ब्लाइंड कैसे हो सकता है? ब्लाइंड होता तो अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता। जनाब, क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ब्लाइंड लोग होते ही नहीं है? वहां तो सब लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। खैर मजाक की बात छोड़िए, ये टिकट कलेक्टर का ऐसा सोचना reveals a lot about our society. इंग्लिश शिक्षा का द्योतक प्राय होता है। शिक्षित लोग हमारे समाज में ये सोचा जाता है वही लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, और ब्लाइंड लोग ब्लाइंड होने के कारण
शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, यही सोच है, इसलिए वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते। मगर आप देखिए, मैं जेएनयू से एमए, एमफिल, पीएचडी अंग्रेजी में किया और पिछले 26-27 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूं। लेकिन आपको ये समझना है कि लोगों के सोचने के तरीके के कारण ये समाज में प्रचलन है कि ब्लाइंड लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसका प्रचलन है कि पढ़ाई आंखों से की जाती है, किताबों को पढ़ी जाती है। तो उस लॉजिक से जो देख नहीं सकता वो अक्षर पढ़ कैसे सकता। लोगों को ये एहसास नहीं है that there are alternative ways of doing things. और ये बात हम लोगों को उनको समझाना है कि भाई जो तरीका आप अपनाते हो वो तरीका ठीक है, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वही तरीका से हम भी अध्ययन करें। हम ब्रेल से करते हैं, आप कंप्यूटर देख के चलाते हो तो हम लोग ओसीआर के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग करते हैं वही चीज, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये तरीका डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि एक मुख्य प्रचलन होता है समाज में जो कि मेजॉरिटी के आधार पर चलता है। एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, एच.जी. वेल्स की कहानी है, कंट्री फॉर द ब्लाइंड। इस कहानी में क्या होता है, देयर इज अ माउंटेन क्लाइंबर, अ साइटेड माउंटेन क्लाइंबर, जो अपने दल से बिछुड़ जाता है और एक्सीडेंटली वो एक ऐसा जगह पहुंचता है जहां की खाली ब्लाइंड लोग रहते हैं। वो सोचता है कि भाई ब्लाइंड लोग तो उससे हम सुपीरियर हैं, इसलिए हम यहाँ के राजा बन जा सकते हैं। उसका सोच था कि अंधों में काना राजा, मैं तो दोनों आंखों से देख सकता हूं, इसलिए मैं बहुत आराम से राजा बन जा सकता हूं। But as the story unfolds, जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उस आदमी को ये एहसास होता है, that sighted person realizes how difficult it is to live in the world of the blind. वहां काम करने का अंदाज अलग था। लोग रात में काम करते थे क्योंकि सुबह में सूरज की रोशनी तेज होती थी और गर्मी होता था। The nights were cooler, so everybody did all their works during the night. They did not require light, so all blind people worked very effortlessly during the night. और उस समाज में जब वो साइटेड आदमी रहने लगा तो उसको परेशानी हो गई, क्योंकि वो रोशनी में देखने के आदी था और देखकर काम करने की आदी था और रात में उसको कुछ नजर ही नहीं आता था, तो वो काम भी नहीं कर पाता था ठीक से।
तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट स्पष्ट है कि मुख्य धारा का प्रचलन संख्या पर आधारित होता है और ब्लाइंड लोगों के पद्धति में साइटेड लोगों भी कमजोर नजर आएंगे, क्योंकि वो सिस्टम उसके अनुकूल नहीं है। हम लोग इसलिए कमजोर थोड़ा नजर आते हैं क्योंकि जो सिस्टम है, जिसको वो डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं, वो हम लोग के अनुकूल नहीं है। हम लोग कमजोर इसलिए नहीं नजर आते कि हम कमजोर हैं। हम लोग को कमजोर व्यवस्था करता है, एक व्यवस्था जो हमारे अनुकूल नहीं है। चलिए अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये साइटेड माउंटेनियर जो था, साइटेड पर्वतारोही जो था, उसको एक लड़की से उस गांव में प्यार हो जाता है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं। अब उस गांव के बुजुर्गों का सभा बैठा कि भाई ये आदमी शादी करना चाहते हैं इस हमारी गांव की लड़की से, क्या शादी की अनुमति दी जाए? In that meeting, the assembly of the blind people decided that they will not give permission for the sighted person to marry this young blind girl from their village. अब किस आधार पर मना करते हैं, इस पर आप जरा सा गौर कीजिए। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति अलबल कुछ बोलता रहता है, बोलता है कि ये चमक रहा है, देखो उधर से वो दौड़ रहा है, हम दूर से देख लेते हैं, दूर से सब पहचान लेते हैं, इसका दिमाग कुछ ढीला है। चमकना क्या होता है? दूर से चीज समझना क्या होता है? बगैर स्पर्श किए हुए कोई चीज समझ कैसे सकता है? ये जरूर पागल है। चलिए इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। उसको डॉक्टर के पास जब ले आया जाता है तो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करता है और बोलता है, अरे इसको जो है ना, ये तो स्वाभाविक है, ये एक रोग है और उस रोग का नाम है आंखें, जो इसके पास हो गया है। अब आप देखिए, ब्लाइंड लोगों के दुनिया में आंखें होना रोग हो जाता है क्योंकि वो असामान्य है। तो विकलांगता जो है कोई कमी नहीं होती, वो केवल एक असामान्य चीज होता है। ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। And it is the system that creates structures that discriminate, because these structures are not in tune with our abilities and needs. So let us create a world in which we can create systems that are attuned to our abilities and strengths. That is what is required. I want to share another story with you. This time, this is a story from Japan.
जापान में एक 17-18 साल का युवक रहता था। उसका ये शौक था कि वो जूडो चैंपियन बनेगा। वो कई प्रशिक्षक के पास जाता है कि आप हमको जूडो सिखाइए और हम नेशनल चैंपियन बनना चाहते हैं। तो ये प्रशिक्षक सब लोग इसको मना कर देते थे। एंड यू नो व्हाई? Because he was a man who had only one arm. He did not have his left arm. लेकिन इस नवयुवक का हौसला इतना बुलंद था कि वो बोला, नहीं, जापान के सबसे बड़ा जूडो टीचर के पास, प्रशिक्षक के पास मैं जाता हूं। वहां वो गया और वो प्रशिक्षक तैयार हो गया उसको सिखाने के लिए। और वो बोला कि हम तुमको चैंपियन बनाएगा, मगर एक शर्त पर। हम जो बोलेंगे वही तुम करते जाओगे और कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। तो इस नवयुवक का प्रशिक्षण शुरू हो गया। तीन महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, और ये प्रशिक्षक उस नवयुवक को एक ही दाव सिखाता था, रोज उसी का अभ्यास कराता था। और ये नवयुवक भी तंग हो गया कि खाली एक ही दाव हमको सिखा रहा है, बाकी लोग को इतने सारे दाव सिखाते हैं, हमको एक ही दाव क्यों सिखा रहा है। चलिए, टूर्नामेंट का वक्त आ गया। पहला राउंड का बाउट जीत गया, दूसरा राउंड का बाउट जीत गया, प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच के जीत गया वो, क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच के जीत गया वो, सेमीफाइनल्स में आके वो जीत गया, और अंततः फाइनल भी जीत गया वो। और जीतने के बाद वो प्रशिक्षक के पास सबसे पहले दौड़ा हुआ जाता है कि सर, आपने अपना वादा पूरा किया, मुझे चैंपियन बना दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे एक ही दाव 6 महीना सिखाते रहे और कुछ और नहीं सिखाया, ऐसा क्यों? अब प्रशिक्षक का जवाब सुनिए। उसने कहा, बेटा, मैं ऐसा दाव तुमको सिखा रहा था जिसका एक ही तोड़ है कि ओपोनेंट का बायां हाथ पकड़ के खींचो, वो गिर जाएगा। तुम्हारा बायां हाथ है ही नहीं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपका क्या खींचेगा? आपका दाव का तोड़ ही नहीं है, इसलिए आप हर राउंड जीतते चले गए। ये कहानी सुनाने का मकसद एक ही है कि अगर आप तरीका से काम करो, अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलो, तो कुछ भी संभव है। लेकिन आपको अपना तरीका स्वयं निकालना होगा और बाकियों से अलग निकालना होगा। बाकी लोग तो अपना कार्य अपने स्ट्रेंथ पर करते हैं और आप कार्य उनके स्ट्रेंथ के तरीका पर कीजिएगा तो आपको परेशानी होगी। आपको ब्रेल आता है, ब्रेल इस्तेमाल कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम सहायता आपको की जरूरत पड़े। कल के बातचीत के दरमियान मध्य प्रदेश का एक लड़का पूछा,
राइटर्स के बारे में। कितना सटीक जवाब मिला। राइटर्स की जरूरत क्यों है? आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा दो, क्योंकि आप अगर बाजार में जाओगे कल तो आपका डिग्री देख के लोग नहीं नौकरी देता। वो पूछेगा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। और अगर आप बोलोगे कि जी सर आपका अकाउंट्स का हम रख सकते हैं, तो वो बोल सकता है बहुत अच्छे, तो आओ रखो, लेकिन सर आपको एक राइटर हमको देना पड़ेगा, जो हम बोलेंगे वो लिखता जाएगा। तो आप देखिए, एक आदमी के काम के लिए उसको 2 आदमी रखना पड़ेगा। और एक राइटर रखेगा जिसको अकाउंट्स भी लिखने आए आपके लिए, तब आप काम करोगे। तो वो राइटर ही को क्यों केवल नहीं रख ले? वो एक पगार पर उसका काम चल जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेट करता है मेरे खिलाफ। मेक योर सेल्फ indispensable for the others। चाहे आप विकलांग हो, डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, दुनिया में पूछ काम के लोगों का होता है। इसलिए सबसे बड़ा मिशन है कि अपने आप को काम का व्यक्ति बनाओ। मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल फॉर द सिस्टम। उसके बाद देखिए कौन किसको डिस्क्रिमिनेट करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि there is no discrimination in society। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी एक्टिविज्म की जरूरत नहीं है। ये सब चीज की जरूरत है, लेकिन सबसे पहला जरूरत है अपना कैपेसिटी बिल्डिंग। अपने आप को काम का व्यक्ति बनाना, अपने आप को कम से कम डिपेंडेंट दूसरों पर होना, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना और इंडिपेंडेंट बनाना। ये आप कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है। Even God only helps those who help themselves। Again, I would like to share with you very quickly a personal anecdote। I lost my eyesight when I was about 12 years old। मैं जन्म से दृष्टिबाधित नहीं था। But when I lost my eyesight, I began to think that, oh, I cannot do things now। तो मैं सब्जी शाम में घर का लाने जाता था, तो मैं सोचने लगा कि अब कोई दूसरा जाके लाएगा। 3-4 दिन 5 दिन कोई दूसरा व्यक्ति जाके ले आता था, परिवार के अन्य सदस्य। लेकिन 1 हफ्ता बाद एक दिन मैं सुबह उठा, नाश्ते पर गया और देखा खाना ही नहीं है, नाश्ता ही नहीं बना है। मेरी माँ बोली कि कोई सब्जी लाया ही नहीं तो नाश्ता बनेगा कैसे? सब्जी लाना तो तुम्हारा काम था। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया, कैसे कर रही है मेरी माँ। हम इतना परेशान हैं और बोलती है कि सब्जी जाके लाओ।
तो मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई ले आएगा या पापा ले आएंगे या आप ले आओगे। तो बोली नहीं, इस घर में खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक आप अपना पुराना कार्य जो करते थे रोजाना का सब्जी लाने का वो नहीं करोगे। हमको लगा ये लोग मजाक कर रहा है। मटिया दिए कि ठीक है, सुबह में नहीं लाए हैं तो दोपहर में कोई ना कोई जाके ले आएगा। आप विश्वास मानिए 2 दिन तक मेरे घर में खाना नहीं बना। और उसके बाद झोला लेकर मन मार के मैं चल पड़ा सब्जी लाने। मैं सब्जी लाया तो घर में खाना बना। और मैं ये जानता था कि मेरे पीछे जरूर कोई ना कोई धीरे धीरे पीछा करते हुए मेरे पीछे आएगा। मेरा छोटा भाई मेरा पीछा करता रहता था बिना ये एहसास दिलाए हुए मुझे कि वो पीछे है, लेकिन वो काम मुझे ही करना पड़ता था। उस समय तो बात नहीं समझ में आई, लेकिन आज ये समझ में आता है कि we cannot withdraw from our responsibilities, making our disability an excuse. We have to perform the roles that every other individual in the society, every other individual in the family performs. You have to be a functional unit of society, a functional unit of the family. And then only you will be treated as a proper member of society. आप ये सोचो, जो डिसफंक्शनल है, जो कोई काम का व्यक्ति नहीं है, चाहे वो विकलांग हो या ना विकलांगता ना हो उसके पास, उसको कोई नहीं पूछता। So the important thing is to make yourself a functional member of society and play life on your strength. At the end of it, I would just like to refer to Thomas Edison, Thomas Alva Edison. नाम तो सुना होगा आपने। बिजली का जनक, the person who invented electricity, the person who invented the lamp, perhaps the greatest scientist of all times. But did you know that Edison could not hear from one ear, and he was 90% hard of hearing from the other? उसको एक कान से सुनाई ही नहीं देता था और दूसरे कान से 90% नहीं सुनाई देता था, केवल 10% सुनाई देता था। उसके बावजूद भी वो देखिए क्या चमत्कार किया। और समाज उसकी विकलांगता नहीं याद रखती, ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उसकी उपलब्धियां पर प्रकाश डालते हैं और कभी कोई नहीं बोलता कि एडिसन डेफ होने के बावजूद भी ये काम किया। अब हमको उठा के दिखाइए कौन किताब में आपको वो बात मिलती है। हमेशा देखिएगा बिजली का जनक एडिसन, इनकैंडेसेंट लैम्प इन्वेंटर एडिसन, वो द डेफ एडिसन नहीं लिखा था। और एडिसन का कहना था कि आई थैंक गॉड दैट ही मेड मी डेफ इन one ear and 90% hard of hearing from the other.
because the world talks uselessly all the time, और वो यूजलेस टॉकिंग हमको सुनाई ही नहीं देता था। इसलिए हम अपने काम पर कंसंट्रेट करके मेहनत से आविष्कार कर पाए। सो थैंक यू गॉड फॉर व्हाट यू गिव मी। इन शब्दों के साथ हम अपना वक्तव्य को विराम देते हैं, एंड आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, and we could talk about other things that I have not talked about as well. Now, this is a topic which I can go on and on talking about, but I have to draw a line because time is running out. So yes, the floor is yours. धन्यवाद सोमेश्वर सर, इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्न आमंत्रित हैं, आप सीधे सर से प्रश्न कर सकते हैं। सोमेश्वर जी, मैं संजय वत्स। हाँ संजय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर all the talk which is given by you. It is really inspire to all the person of the society, but I could not understand the story which is spoke by you, which is tell by you. If the sighted people come in the field of the visually challenged field and they are not accepted in your story, then the people those have the vision, why they will accept you people? See, I use that story for another purpose. I tried to show that the so-called normal is determined by numbers rather than biological condition. मेरा ये कहना था कि देखिए, अंधों के दुनिया में भी साइटेड लोग जो हैं डिसएडवांटेज्ड हैं, और उन लोगों को इसी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। I'm not idealizing the response of the blind people, लेकिन उन लोगों को डर था, ठीक उसी तरह से लोग को भय होता है। Negotiating difference has always been a source of great anxiety. Whether this difference is across dividing lines of ability, race, gender, or caste, negotiation of difference is always a matter of anxiety. That is what I wanted to show. And we need to find ways to control that anxiety and create a world in which not only the sighted person would have been allowed to marry the blind woman, but also in our society, a blind man would, or a blind woman would easily be accepted as a sighted person's wife. I'm not idealizing the ending of the story, not at all. I'm just highlighting that anxieties would exist, would always exist. And we need to understand those anxieties and try to tackle and negotiate them. I hope I have answered your question, Sanjay. Yeah, I agreed with your points, sir. But more or less in all the conversations which I observed and understand, the vision is not our power or our weakness. If you have the vision, you are not doing well for the society. And if you do not have the vision and you did some ideal things for the society, it will be the empower the society and the impact of the society. It is more important instead of I and other things. Let us put it this way, Sanjay ji. I am not limited to my eyes, right? A blind person is more than his eyes.
That is what we need to understand. And irrespective of whether you are blind or you are sighted, you are disabled or non-disabled, you are valued according to your role in society. And that is something that we need to take account. Because there is this, as in my own story, I said, when I lost my sight, I said कि अब हम देख नहीं सकते, कोई जो है मेरा काम कर देगा. ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है. It is a very natural reaction. My intent was to make people realize that despite your so-called loss within inverted quotes, you cannot pity yourself, nor can you blame the society. Charity begins at home. You have to begin to help yourself. अपना हाथ जगन्नाथ. पहला कदम आपको उठाना है और समाज आपके पीछे पीछे चलेगा. आप ये इंतजार नहीं कीजिए कि समाज आपके लिए कुछ करेगा उसके बाद आप कदम उठाओगे. अगर आपकी मानसिकता इस तरह की है तो शायद जिंदगी भर आप इंतजार ही करते रह जाओगे. मेरा यही कहना है कि we should begin to help ourselves. Yes, the system is at fault. To the other people and the other society members. And if you are growing up with these kind of thoughts, how you will improve your own thoughts? Why? By being a role model, right? And your contribution to the society can be also in terms of uplifting the other members of the community. हमने ये कभी नहीं कहा कि बाकी लोग को पीछे छोड़ दीजिए. मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप मदद के इंतजार नहीं कीजिए. मदद का इंतजार नहीं कीजिए का ये मतलब नहीं होता कि दूसरे का मदद नहीं कीजिए. आपको दूसरों को भी मदद करना है, दूसरों को का सहायता करना है, दूसरे के कॉज के लिए भी लड़ना है, लेकिन पहला कदम आपको शुरू करना है. अपना हाथ जगन्नाथ होता है और you should be the starting point of your own story. And in that story, you should bring everybody into play. Whether disabled or non-disabled, we should fight for a better society. सबकी स्थिति को सुधारना है. और डिसेबिलिटी अपने आप में एक वैक्यूम में नहीं ऑपरेट करता. There are a number of intersectionalities. प्रीति मैडम पढ़ाती है LSR में. उनसे एक बार किसी ने पूछा कि प्रीति तुम देख नहीं सकती तो तुमको थोड़ा सा don't you feel disadvantaged? You know what she answered? कि I do not, because despite the fact that I cannot see, I have been able to educate myself. There are so many other girls in this world who are so poor and who cannot even dream of education. So who is more disadvantaged? Am I more disadvantaged? Or is the unfortunate poor girl who cannot even go to school disadvantaged? So disability operates in multiple cross sections with other vectors of marginalization. That is something that we need to understand. So I don't want people to harp on their disability.
and constantly blame others. That is basically what I'm trying to say. Instead of pointing fingers, let us start taking steps towards improving our condition. और ये कहा भी जाता है ना, दूसरे की तरफ आप उंगली दिखाते हैं, एक उंगली तो 3 उंगली आपके अपने तरफ अंकित करता है. It points towards you. Right? So that is basically what I want to say. I'm not saying that be selfish, don't help anybody else. Let us act as a team, but let us take the first step ourselves. Nothing about us without us. ये तो मेन स्लोगन है डिसेबिलिटी एक्टिविज्म के बाद. Right? If we want to change the society in terms of its attitude towards disability, it is the disabled community that needs to come forward and play a revolutionary role. We should not expect the rest of the world to do it for us. As I said, God helps those who help themselves. Thank you, Someshwar sir, for such a motivational deliberation. I'm sure that it must have motivated not only students, but we also as faculty. And I, though not, I would say that I am not a disabled person in that sense, with a physical disability, but at the same time, I feel that I do have other disabilities where I can say that I could be disabled with technology, not like the mastery which we should all have at this point of time where everything is going online. But your talk has actually inspired me, and it has like that self-help is the best help, the way you said, and we should be making ourselves indispensable rather than every time cribbing that we are not getting help or we are not able to perform certain things because we are not equipped with. So thank you, sir, for such a wonderful deliberation. Now, I would request everyone to please switch on their video so that I can take some memorable photographs with Someshwar sir. And I would like to extend my thanks to Chanda ma'am also. हेलो मैम, मैं अनिल सहानी मैम. एक क्वेश्चन है मेरा. मुझे एक जानकारी चाहिए. जो आपकी एनजीओ है दिव्यांगों की एजुकेशन से भी रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं हेल्प करती है क्या? देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये सच है. और ये भी सच है कि इंग्लिश इज ऑल्सो अ प्रिविलेज्ड लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी. सर शायद मैं जो कहना चाह रहा था, मतलब मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो एजुकेशन जो दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, आपका जो ये संस्था है दिव्यांगों के लिए जो शिक्षा, मतलब जो भी कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं तो उसमें हेल्प देते हैं क्या? मेरा सर ये क्वेश्चन है. देखिए, मैं कोई संस्था नहीं चलाता. जी सर. वो किरोड़ीमल कॉलेज के इनेबलिंग यूनिट से हम लोग जुड़े हुए हैं. जी सर. और इसी महीना एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम लोग खोले हैं किरोड़ीमल कॉलेज में. जी जी. ये नई जो इकाई कॉलेज का खुला है, जी सर, उसके माध्यम से जो आप कह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोगों का सहायता करें. लेकिन अभी ये समझिए कि जन्म भी नहीं लिया है.
इसी साल गवर्निंग बॉडी ने अप्रूवल किया है, माने जी इस सर। महीने, और उसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं। उम्मीद है कि 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना में हम लोग कार्यशील हो जाएंगे। बिल्कुल। जी जी। जैसे सर हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत सारे यंत्र आते हैं, शायद आपको पता भी होगा अगर सर जुड़े हैं तो। जैसे डीजी प्लेयर का जिक्र एक लोगों ने किया, उनकी आवाज़ चली गई, तो डीजी प्लेयर हम लोग का एक यंत्र होता है और टॉकिंग करता है, उसमें हम लोग कोर्स रिकॉर्ड करके हाँ, डिजिटल और रिकॉर्डर होता है। हाँ जी 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 सर जी। तो उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कॉपी और इसमें टाइम काफ़ी चीज़ें उससे हम लोग कर सकते हैं। डीजी प्लेयर एक सक्षम का भी डिवाइस है वो। जी। जी सर। तो हमने सोचा सर इससे संबंधित हम लोग का आप हेल्प करते थे, तो धन्यवाद हमें सर किस तरह आपने से याद कर। हेल्प कर सकते हैं बताइए, जरूर प्रयास करेंगे। सर इसी यंत्र से संबंधित जैसे रिकॉर्डर फोल्डर से जो मिलता हम लोग का उसके लिए सर। मैंने उपलब्ध करवाएं, ये बोल रहे हैं। जी 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 जी। डीजी प्लेयर जो उसका नाम है सर। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। और हमारा जो सेंटर है किरोड़ीमल कॉलेज में, जी सर। वो जो है वो इट हैज टाइड अप विद सक्षम, जो एनजीओ है, जी सर। उपेंद्र मनोचा, with this जी very purpose in mind. But we are starting from college. पहले कॉलेज के छात्रों का ध्यान रखने का सोच रहे हैं, और 6 महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाद उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो वो छोटे छोटे कदमों से होता है, and we are still taking our baby steps, and we hope that in future we will be able to provide the kinds of things that you are mentioning, right? But at this point of time, we are getting everything done through Saksham. So if you have certain needs, please let us know. We'll try to help you out and make things available in the best way that we can. है ना? आपने अभी एक प्रपोजल के बारे में बताया डॉक्टर साहब, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, विस्तार से बताएंगे क्या प्रपोजल है, ई प्रपोजल? देखिए, मैंने कहा कि किरोड़ीमल कॉलेज में एक सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम लोग खोले हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य, द प्राइम ऑब्जेक्टिव of this center is to evolve modules to promote inclusion in all spheres of education, from identifying the needs of the disabled students to providing solutions to their problems. And this would include a number of things. That would include capacity building, providing them with technological support, teaching them how to use technology, and equipping them to make themselves marketable in the market, to finding professional job openings for them. So it is a holistic package that we plan, but this center was established in this month itself. So we are still in its very initial stages. We want to take up the cause of the students of the college first, and then move on beyond the college and expand ourselves to as wide as we can. It will be extended to the other colleges or the other part of the society? Both. But we need to prove ourselves within college first, within our own college. Then only can we extend it to other college.
आप कोई काम कीजिएगा तो पहले वो बोलेगा कि आपने अपने कॉलेज में क्या किया कि हम ये विश्वास करें कि आप मेरे कॉलेज में परिवर्तन ले आए हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि पहला साल हम लोग कॉलेज पर फोकस करेंगे, and from the second year onwards we will expand to other colleges and other educational institutions including schools. May you please share the copy of I that have a proposal question. so that we will go through with that proposal and ask our authority to implement this in our own institutions also? Definitely yes. And your institution would be? Sorry, I wanted to know which institution. Actually, presently I am working for Doordarshan National. Right. Okay, we can talk about this, Sanjay ji, if I got your name right. Yeah, you are absolutely right, Dr. Sir. Yeah. We'll talk about this, Sanjay ji. आप चंदा जी से मेरा नंबर ले लीजिए और जब भी मन चाहे we can have a word about this. Yeah, I will come and discuss with you on these points, sir, and we will try to implement this policy and this proposal in other institutes of Delhi and NCR. That would be a dream come true for me. Definitely, I will try my level best. Thank you so much, Sanjay ji. We need people like you. Welcome, sir, as always. कोई और प्रश्न श्रोताओं की ओर से सर से? सर एक क्वेश्चन और है, ये वेबिनार सर आज समापन की ओर है ना सर, मतलब इसके बाद ये वेबिनार मतलब खत्म हो जाएगा जो हम लोग का था। जी जी, पूछिए सर से जो पूछना है आपको। मैम जैसे कोई भी आपके द्वारा मतलब जानकारी हम लोग के लिए कोई वेबिनार या कुछ भी मतलब आयोजन की जा रही है तो हम लोग तक कैसे जानकारी पहुंचेगी? जी, आपको ग्रुप में सोशल मीडिया की लिंक शेयर कर दी गई है। हमारे कॉलेज में जो भी इवेंट्स होंगे वो अपडेट किए जाएंगे, तो आप प्लीज उसको लाइक कर लीजिएगा, तो आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग ये सर। जो कह रहे हैं बहुत जरूरी बात है। जी, आज सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज सर से पूछ सकते हैं। Good evening, sir, and good evening, everyone. Sir, this is Muskan. The lecture which you gave today was very factual and practical, and also the anecdotes you shared from your life hit really close to home because it happens even today in 2021. I don't have a question as such, but I love the stories which you told, especially the H.G. Wells story, and I'm a voracious reader myself. So, will you please recommend a few favorites of yours for me and others to devour? See, there are many stories, but I think H.G. Wells is one story that you should definitely read. Our Indian tradition is full of stories. There are two kinds of stories. Stories that portray reality as it is, right? For example, रविन्द्रनाथ टैगोर के शुभा पढ़िए, बंकिम चंद्र की रजनी पढ़िए, right? If you want me to give you a list, I can give you a list of about more than 100 short stories. I will share that with Chanda, and you can take it from her later. Yes, sir. And what not is your just a subject, short. Muskan? I just completed BCom, but I'm planning to do MA in English literature. Okay, so welcome to the gang, as it were, Muskan. Sorry, sir? I said we will welcome you to the English group with a smile. Thank you, sir. And sir, by the way, not just the short stories, but full novels as well. Absolutely. Right. I will definitely share a entire list with Chanda. You give me a week or so, right? And, no issue, sir. Thank you. Yeah, thank you so much, Muskan.
सोमेश्वर जी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जाते ही बच्चे मुझसे मेल पे पूछना शुरू कर देंगे कि सर ने आपको दिया कि नहीं दिया। मैं 1 हफ्ता का समय मांगा हूँ। जी जी, है ना? तो आज है 19 तारीख। हम 30 तक वेट करेंगे, 30 31 तक। 27 तारीख के पहले मैडम को नहीं तंग कीजिएगा। क्योंकि बच्चों को लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सर ने तो कहा था, दे दिया होगा। और किसी बच्चे का प्रश्न है, किसी बच्चे का प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो मैं समाप्ति की ओर ले जाऊं प्रोग्राम को। सुरभि, चैट बॉक्स में कुछ है क्या? मैम चेक कर रही हूँ। नहीं मैम, चैट बॉक्स में सिर्फ सर के लिए बहुत सारी बधाइयाँ हैं और सब धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं सर के लिए एक इंस्पायरिंग सेशन के लिए। हाँ तो बताओ तो सही। सर के लिए आया वेरी मोटिवेशनल सेशन, वेरी नाइस सर, इट्स रियली एनलाइटफुल सेशन, a new learning and inspiring session sir, motivated session। मैं थोड़ी बातें कर लेती हूँ। हाँ, एक्चुअली वो बतियाने भी जा रहे थे सोमेश्वर जी से और हम लोगों से। तो सर आप आए और हमारे चंदा जी हाँ, आपका ये कार्यक्रम सचमुच बहुत ही उपयोगी रहा। सोमेश्वर सर को मैंने सुना और बहुत ही अच्छा लगा सर। बच्चे तो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हम चाहेंगे इस तरह से समय समय पर दीदी आप ये आयोजन करती रहें और बच्चे और भी आगे भी भविष्य में सर से मशवरा लेते रहें, सर के गाइडलाइंस लेते रहें। और जिस तरह से सर ने कहा कि बच्चे अपने आप में सक्षम बने और अपने अस्तित्व को लेकर और अधिक सजग हों, ये सब बातें अनिश्चित तौर पर बच्चे समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपका वक्तव्य, और जितनी सरलता से और जितनी सहजता से आपने कही है वो कमाल का है। आपका कथन, आपका एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्ति, बहुत अच्छा लगा सर। चंदा जी, आपको इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई। सूचित कर दूं कि ये मेरी सहयोगी हैं अंजू मैडम, जो आपको बधाई दे रही हैं। मैं आप चाह रही थी कि आप परिचित हो जाएं। अंजू जी हैं मेरे डिपार्टमेंट में, गेस्ट फैकल्टी हैं इस समय। Thank you so much, Anju ji, for those kind and generous words. What made my talk today possible was you people organizing it. And as you rightly said, Chanda should be the real congratulations. चंदा दी। सोमेश्वर जी, मेरे को आपका गाइडेंस चाहिए आगे भी, और मैं जो भी डिजाइन करूंगी मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं ठीक दिशा में ये ले जाऊंगी। और मैं चाहती हूं कि जमीनी स्तर पे काम हो, बच्चे आपको सुने और अपनी लाइफ में उन चीजों को उतारें। क्योंकि होता क्या है, ये आपने जो एग्जाम्पल दिया अपने बचपन का कि सब्जी लेने आपको लगा भाई कोई तो ले ही आएगा, तो जो आपके माँ ने जिम्मेदारी दी कि भैया तुम्हारा काम तुम ही करोगे, यही चीज हमें सीखना है कि जो हमारा काम है वो हमें करना है, चाहे जैसे भी करना है वो सीखें। क्योंकि ये कोई कंसेशन नहीं है। जी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम देख नहीं सकते तो हमें बैठ के ही खाना है। ये हमें अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना है। ये जो चुनौती आपने रखा, इन सारी चीजों को हमें अपने जीवन में उतारना है। रियली सोमेश्वर जी, बहुत बहुत ध्यान से मैंने एक एक चीज सुना, और चूंकि मैं आपको सुनती रहती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ आप छोड़ जाते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेटली कल और आज के सेशन से इन्होंने कुछ जरूर सीखा होगा। आप लोग जरूर एक पैराग्राफ में जरूर लिखना बच्चों की कैसा लगा ये दोनों दिन का वेबिनार, एक पैराग्राफ। बाद में मेरे को ये नहीं बोलना कि आपने बोला नहीं, तो मैं पब्लिक जगह पे बोल ली, क्योंकि बाद में आप डिनाई कर देते हो कि नहीं आपने बोला नहीं था। तो सोमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण समय के लिए भी और व्याख्यान के लिए भी। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। Thank you so much, Chandan. The pleasure was all mine. Thank you. Thank you.